So good morning everyone. I hope you all are fit and fine and doing well. As you know that we have started chapter number 6 in our science book, that is rocks and minerals. So children, we have done what are rocks, how are they formed, what are the types of rocks, and first type of rock, igneous rock, and its example we have done. So quickly I am going to give you brief of everything so you can recall. After that we will start new type today. Okay children, so what are rocks beta? First of all, earth is made up of two things, soil and rocks, right? About soil we have studied already in chapter number 5. In this chapter we are going to study about rocks, right? So, and rocks are made by minerals, right? We have three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks are formed by cooling and hardening of hot molten rocks. Hot molten rocks flow from volcano. We have two forms of hot molten rock. When they are present inside the earth, they are known as magma, and when they flow on the surface of the earth, they are known as lava. So in short, we can say when lava or magma cools down, it is known as igneous rock. So 95% of Earth's crust is made up of igneous rock. We have done examples of igneous rock. So we have four examples. Igneous rocks. First is granite. Second is pumice. Third is obsidian. And fourth is basalt. Okay. So I have told you only granite is formed from magma. When magma cools down, granite forms, right? Except granite, all these three examples of igneous rocks are formed by lava only. It has lava and gases. Okay. Obsidian, quick cooling of lava. And basalt forms when lava cools down on surface of earth, right? We have done this. Granite is a very hard rock. Pumice is a light color and lightweight rock. Obsidian is a very smooth and shiny rock. And basalt is dense and dark rock. These are the properties of these rocks, right? Then we have done granite is used in kitchen counter, floors, etc. Pumice is used in polishing floors or teeth. And obsidian is used in making jewelry. And basalt is used in construction of road. I hope children, all the things which we have done about igneous rocks and about its type, it is already clear to you, and I have given you brief already. So children, now today we are going to start second type of rocks, that is sedimentary. So let's not waste time and quickly let us revise what is sedimentary rocks, and we have to do example of these rocks today. Okay beta? So our today's type is sedimentary rock. So first of all we will read about it, then I will explain you. Okay children? So please open page number 44 in your science book and let's read about it. Water, wind, rain and snow break away big rocks, right? बेटा हमने जैसे सॉइल इरोजन में पढ़ा था ना, वाटर और विंड क्या करते थे, सॉइल को इरोज करते थे ना, टॉप लेयर को यहाँ से वहाँ ले जाते थे. इसी तरह वाटर, विंड ये क्या करते हैं, ये रॉक्स को भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, राइट? The rock particles so formed are carried away by wind and flowing water into rivers, lakes and seas. अब जो ये टूटी हुई रॉक्स हैं बेटा, इसको वाटर और विंड क्या करते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं आपकी, पॉन्ड्स हैं, रिवर हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, इसमें लेके चले जाते हैं. किसको? रॉक्स के टूटे हुए हिस्सों को. ठीक है. These rock particles settle at the bottom of the water bodies and form layers.
और जो ये टूटे हुए पार्टिकल्स है ना, ये अब स्टोन तो हैवी होता है, ठीक है, वो तो सिंक कर जाएगा ना वाटर में, तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उसमें ये रॉक क्या हो जाते हैं, बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। द लेयर्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स, और ये जो लेयर्स फॉर्म करते हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं, किसकी वजह से, मिनरल्स की वजह से। Repeated deposition of layers presses down the lower layers and then turns into them rocks. तो बेटा ये क्या होता है, ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है। कौन सा प्रोसेस बेटा, देखो सपोज कीजिए ये एक रॉक थी, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रॉक थी, ठीक है, इसको क्या किया, बारिश ने और हवा ने इस रॉक को तोड़ दिया, ठीक है, इस रॉक को ब्रेक कर दिया। अब ये जो टूटे हुए पार्टिकल्स थे इनको विंड और वाटर कहाँ लेके चले गए, वाटर बॉडीज में। कहाँ लेके चले गए बेटा, वाटर बॉडीज में, ठीक है, क्योंकि रॉक ये हैवी होता है, ये रॉक के पार्टिकल्स हैवी हैं, तो ये वाटर बॉडीज के बॉटम में जाके क्या हो गए, सेटल हो गए, ठीक है। और जितने भी मिनरल्स थे ये इनकी लेयर्स क्या है, बॉटम में जाके सेटल हो गई, और मिनरल्स ने क्या किया, इन लेयर्स को सीमेंट कर दिया, मतलब आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ये प्रोसेस होता रहा, जुड़ती गई ये लेयर्स और सीमेंटेड जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो फॉर्म हो गई। सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ मिलती हैं, वाटर बॉडीज में, ठीक है, क्योंकि जो विंड और एयर होते हैं ये ब्रोकन पार्ट्स जो रॉक्स के होते हैं उन पार्टिकल्स को कहाँ सेटल कर देता है, वाटर बॉडीज के बॉटम में। तो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ मिलेंगी, वाटर बॉडीज में, ओके बेटा। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स। आपको पता है ना, आपकी जो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उसमें क्रिएचर्स रहते हैं, राइट, सी क्रिएचर्स होते हैं ना आपके, तो उनकी बॉडी से भी जब वो वहीं पे मर जाते हैं तो उनकी बॉडी में जितनी भी बोन्स वगैरह होते हैं उनसे भी क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं, ओके चिल्ड्रन। About 75% of the rocks found on the surface of the earth are sedimentary rocks, ठीक है बेटा। तो इग्नियस रॉक्स का कितना पार्ट था, 95%, और अर्थ के क्रस्ट में सेडिमेंट्री रॉक्स का परसेंटेज क्या है, 75%। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक। लेट अस मूव टू द टाइप ऑफ दी सेडिमेंट्री रॉक। तो फर्स्ट इज सैंडस्टोन। सेडिमेंट्री का फर्स्ट टाइप क्या है बेटा, सैंडस्टोन, ओके। सैंडस्टोन एज इट्स नेम इज टेलिंग अस, ये किससे बनेगा, सैंड से बनेगा। सैंडस्टोन का फॉर्मेशन किससे होता है, सैंड से होता है। इट इज अ सॉफ्ट स्टोन मेड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सैंड दैट गेट सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है। क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन सैंडस्टोन की, एक तो ये सॉफ्ट स्टोन है, कैसा स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है, और किससे बना है, सैंड पार्टिकल से बना है। किससे बना है बेटा, सैंड पार्टिकल से, ओके। द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन सैंडस्टोन इज क्वार्ट्ज। तो आपका जो सैंडस्टोन है इसमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल मिलता है बेटा, क्वार्ट्ज। कौन सा मिनरल इसमें मिलता है, क्वार्ट्ज, ओके। द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा फोर्ट इन आगरा आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है। तो जो आपका रेड फोर्ट है दिल्ली में और जो आगरा फोर्ट है आगरा में, वो किससे मिलके बना है, सैंडस्टोन से ही मिलके बना है, ठीक है। मैं वापस से रिवाइज करा देती हूँ बेटा। सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन एक सॉफ्ट स्टोन है जिसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, सैंड पार्टिकल से हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा एक्सेस कौन से मिनरल की होती है, क्वार्ट्ज की होती है, ओके चिल्ड्रन। और सैंडस्टोन का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वो मॉन्यूमेंट सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, और आगरा में जो आगरा फोर्ट है वो किससे मिलके बना हुआ है, सैंडस्टोन से मिलके बना हुआ है, ओके। नाउ मूविंग टू द second type of sedimentary rock, that is conglomerate, okay. So here second type of is conglomerate, okay. Conglomerate rock is made up from pebbles, gravel and boulders। बेटा ये सब क्या है, ये स्टोन के टाइप है, ठीक है। ग्रेवल मैंने बताया था टाइनी स्टोन्स होते हैं, पेबल्स दीज आर ऑल्सो स्टोन्स, एंड बोल्डर्स दीज आर ऑल ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स। तो किससे मिलके बना होता है कॉन्ग्लोमरेट, पेबल, ग्रेवल, ये जो है ना बेटा ये टाइप्स हैं स्टोन्स के, ओके, एंड दिस इज बोल्डर्स, ओके। सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स एंड सैंड,
और ये किसकी वजह से जुड़ जाते हैं बेटा, किसकी वजह से ज्वाइंट हो जाते हैं, मिनरल्स की वजह से या फिर सैंड की वजह से। ओके, इट हैज अ वेरी अनइवन टेक्सचर एंड इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका टेक्सचर क्या होता है, अनइवन होता है, मतलब प्लेन नहीं होता है, अनइवन होता है। ओके, इसका टेक्सचर कैसा होता है बेटा, अनइवन होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, conglomerate is made from pebble, gravel and boulders cemented together with the help of sand and minerals. Okay, and it has uneven texture and it is used in construction. Okay, next is shell. Okay बेटा, next क्या है आपका shell. It is made from clay particles. देखो sandstone किससे मिलके बना था, sand particle से। ठीक है, और shell किससे मिलके बना है बेटा, क्ले पार्टिकल से। क्ले कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट सी होती है ना, तो क्ले पार्टिकल से मिलके बना है। इट इज यूज टू मेक ब्रिक्स एंड टाइल्स। और शेल का यूज क्या होता है बेटा, ब्रिक्स को और टाइल्स को बनाने में इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, इट कंटेन्स द मिनरल कैल्शियम एंड शेल्स ऑफ सी क्रिएचर। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, लाइमस्टोन में होता है कैल्शियम। ठीक है, और शेल्स होते हैं किसके बेटा, सी क्रिएचर्स के शेल्स होते हैं। सी क्रिएचर्स के शेल मतलब जो आपके सी में जो क्रिएचर्स रहते हैं ना बेटा, वो कहाँ जाते हैं, वो मर के वहीं रह जाते हैं, तो उनकी जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो भी वाटर बॉडी में ही रह जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू मेक सीमेंट, लाइम, ग्लास एंड ब्रिक। इसका यूज किस किस में आता है बेटा, इस शेल का यूज, लाइमस्टोन का यूज हम करते हैं सीमेंट बनाने में, लाइम बनाने में, ग्लास बनाने में और ब्रिक्स बनाने में। ठीक है, आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड पे हम जो चौक यूज करते हैं ना, वो भी किससे मिलके बना होता है, लाइमस्टोन से मिलके बना होता है। ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी डिड सेडिमेंट्री रॉक एंड टाइप्स ऑफ इट. आई होप these parts are clear to you. Please watch the video carefully and if you have any query you can ask your doubt. Thank you.